Dear students, today we'll read fourth chapter of Moments book, and the title of the story is In the Kingdom of Fools, and this is for the students of ninth class. And we have already covered in the first part of the video that there was a foolish king and minister in a certain kingdom, and they did not want to rule like other kings. That's why they decided to change night into day and night and day into night. And they asked everyone that they will do their necessary work at night, and nobody will be seen outside during the day. And those who violate, break the rules, will be punished with capital punishment, will be death will be given. So in this way, a thief was pursuing his ancient business, meant to say a thief was breaking into a house, and when he was carrying out loot means the looted material, the luggage which he valuable things he had stolen from the house, and when he was carrying them out of the house, then the wall of the house fell on him and instantly killed him. Then his brother reached the king, and the king was very foolish. And what he decided that now justice will be done, and he summoned all the people involved in the matter in this case. So, what happens? The man said that the owner of the house said, "It is not my fault. The wall was built my father, and his father is no more." Okay, then who built the wall? Then he said that this wall was built by a certain mason. Mason means who works in stone and builds a house is known as mason, Mason. And in this way, the mason comes over there. He complained that he was not able to put on his attention on the work because he was disturbed by the jingling sound of the anklets that was created by a young girl who was walking up and down the street on that particular day. And that's why the wall was built wrong, and it fell on the poor thief and killed him instantly. And now what happens? Now the king is asking, in the second video we'll cover that the king is asking the man who was held guilty. And here is the now the king is asking the goldsmith why why he was not able to make the jewelry in time. And now what he tells here, see, who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted his bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? Okay, so the king is asking the man, who is this rich merchant? कि ये rich merchant कौन है? Who who did not let you to finish the poor woman's jewelry, and that's why you gave her excuses and you made her walk up and down again and again, and that distracted this bricklayer who made a wrong size wall, and this wall fell on an innocent man and killed him. Can you name him? The goldsmith named the merchant. In this way जो goldsmith है उसने अब merchant का नाम बताया, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. और जो रिच मर्चेंट था ये कोई दूसरा नहीं था बल्कि उस हाउस का जो ओरिजिनल ओनर था, मालिक था, जिसकी दीवार गिर चुकी थी, वही था. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट. अब जस्टिस जो है ये चरम सीमा पर है अपने फुल सर्कल का मतलब. नाउ द जस्टिस हैज़ कम टू द क्लाइमैक्स, एंड किंग इसके ऊपर जो है विचार करता है, कंसिडर करता है, और दोबारा वो मर्चेंट की तरफ मुड़ते हुए जो है मुखातिब होते हुए उसने कहा, When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying,
It wasn't me but my father who ordered the jewelry. तो जब रूडली उसको कोर्ट में बुलाया गया तो जो मर्चेंट था वो वहाँ पर आता है रोता हुआ और कहता है कि मेरे फादर ने ये ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं दिया. ही इज़ डैड, वो अब इस दुनिया में नहीं है. आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली. डिसाइसिवली मीन्स वेरी केयरफुली. और लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर के साथ में कंसल्ट किया और बड़ी ही सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने कहा, इट इज़ ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. ये सच है कि योर फादर एक ट्रू मर्डरर है, वास्तव में मर्डरर वही है. ही इज़ डैड, वो अब इस दुनिया में नहीं है. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को उसके स्थान पर दंड मिलना ही चाहिए. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. और तुमने अपने फादर से सब कुछ विरासत में प्राप्त किया है, उसकी दौलत तथा उसके पाप. यानी कि अगर उसकी दौलत लेते हो तो उसके पाप भी तुम्हारे हिस्से में आएंगे. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. मैं तो जानता था जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो. You must die, तुम्हें मरना होगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. और किंग ने अब नई जो एग्जीक्यूशन बनाने के लिए ऑर्डर दिया कि इसके लिए नई सूली बनाई जाए, ताकि उस ज़माने में जो है सूली पे चढ़ाया जाता था, जैसे उसे बोलते हैं क्रूसीफाई करना, तो सूली पे लटकाते थे, उसके लिए तैयारी करने के लिए कहा. एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. जब सर्वेंट्स ने उस स्टेक होता है वो जो पॉइंटेड पार्ट होता है, जो वहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके द्वारा इसको इम्पेल किया जाता है, इसी को पेनिट्रेट किया जाता है बॉडी पार्ट्स में, जिससे कि आदमी की डेथ हो जाती है. उसको शार्पन किया और उसे फाइनल इम्पेलिंग, क्रिमिनल को जो है इस पर सूली पर चढ़ाने से पहले, फाइनल इम्पेलिंग से पहले उसको शार्पन किया. तो मिनिस्टर को लगा, मंत्री को लगा कि जो रिच मर्चेंट है वो इस सूली पर चढ़ने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा पतला है, थिन है. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस. और उसने राजा की जो सूझबूझ, जो कॉमन जो सेंस थी, उससे रिक्वेस्ट की, यानी कि राजा से उसने कंसल्ट किया. द किंग टू वरीड अबाउट इट. अब राजा ने भी इसके बारे में जो है वो वरीड हो गया. वट शैल वी डू, हम क्या करें. ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. देन इट वॉज डिसाइडेड दैट अ फैट मैन हु कुड फिट दिस स्टेक शुड बी फाउंड. कि अब ऐसे आदमी को ढूंढने की ज़रूरत है जिसको इस सूली पे चढ़ाया जा सके. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for the months on bananas and rice and wheat and ghee. And they found the disciple who was very fat because he was feeding on bananas and rice, wheat and ghee. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. और जब उस डिसाइपल, उस शिष्य को पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं सन्यासी हूँ. वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ. दैट मे बी ट्रू, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू बी फिट द स्टेक, दे सेड, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. लेकिन जो राजा के लोग थे उन्होंने कहा कि ये रॉयल डिक्री है. रॉयल डिक्री का मतलब होता है शाही आदेश,
कि ये शाही आदेश है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये शाही आदेश है, रॉयल डिक्री है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, रॉयल डिक्री, डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, कि ये रॉयल डिक्री है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कि तुम्हें इस पे चढ़ाया जाएगा क्योंकि तुम इतने मोटे हो कि तुम इसके लिए फिट हो, उन्होंने कहा। और उसे वो एग्जीक्यूशन का जो प्लेस था जहाँ पर सूली पे चढ़ाना था, लटकाना था, वहाँ पर उसे लेके जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अपने गुरु की जो ज्ञान के जो वर्ड्स थे, जो बुद्धिमत्ता की जो बात थी, वो अपने गुरु की बातें याद आती हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्या होगा। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। जब वो डेथ का वेट कर रहा था तो उसने अपने गुरु से प्रे किया मन ही मन में, और उससे कहा कि जो जहाँ कहीं भी वो थे वो उसकी पुकार को सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु ने सब कुछ साफ साफ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट। बिकॉज जो गुरु था उसके पास मैजिक पावर थी, और बिकॉज ऑफ दोज मैजिक पावर्स ही कुड सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड दैट्स वाई he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. And he came to the place where his disciple was waiting for death, and his disciple had been trapped through love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही गुरु वहाँ आता है वो अपने शिष्य को डांटता है, और स्कोल्ड का मतलब यहाँ पर होता है चाइड करना, ठीक है, चाइड कह लो, स्कोल्ड कह लो, डांटना होता है इसका मतलब। उसने अपने शिष्य को डांटा और डांटते हुए कहा कि उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। कैसे कहा? फुसफुसाते हुए कहा। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the Guru or the disciple? Of course the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. Okay. The Guru asked the king, who was greater? Who was greater? Either Guru or disciple. The king simply answered that definitely, certainly, it was Guru who was greater. Then Guru made a request to the king that in this way he must be put on stake first. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. So clamor means shor sharaba. Clamor means शोर शराबा। जब डिसाइपल ने ऐसा सुना तो उसने शोर शराबा करना स्टार्ट कर दिया। मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। नहीं, पहले मुझे तुम यहाँ पहले लेके आए थे, मुझे पहले जो है, पहले मुझे डेथ दो, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य, गुरु एंड डिसाइपल के बीच में लड़ाई हो जाती है कि पहले किसे फांसी पे चढ़ना चाहिए, सूली पे चढ़ना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड, पजल्ड मीन्स हैरान। ही वॉज इन ए डिलेमा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर से राजा बहुत परेशान था, पजल्ड हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? We chose him because we needed a fat man for the stake. और उसने गुरु से पूछा, राजा ने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने उसे इसलिए चुना, सिलेक्ट किया, बिकॉज हमें
इस सूली के लिए, स्टेक के लिए एक फैट मैन की ज़रूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने रिप्लाई किया, तुम्हें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए मुझसे, मुझे सिर्फ तुम कैपिटल पनिशमेंट दो, डेथ पनिशमेंट दो। वाई, क्यों? दैट देयर इज सम मिस्ट्री हियर, इसमें कुछ राज है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम बुद्धिमान आदमी हो तो मुझे समझाइए। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। तो गुरु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे डेथ दोगे, कैपिटल पनिशमेंट मुझे दोगे अगर मैं आपको ऐसा बताऊं तो। आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, और राजा ने भी अपना वचन उसे दे दिया। सोलेम का मतलब सीरियस। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. गुरु उसे एक तरफ लेके गया और उसके नौकर से, सर्वेंट से दूर लेके गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, तुम जानते हो कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं, दोनों के दोनों? क्योंकि हमने पूरे संसार भर में घूमा है, हमें कोई ऐसा शहर मिला नहीं आपके जैसा, और ना ही आपके जैसा कोई राजा मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस, ये तो न्याय के देवता की सूली है। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी भी कोई अपराधी अभी तक डेथ नहीं हुई उसकी। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. तो जो पहले जो इस मरेगा इस सूली के ऊपर, जिसकी डेथ होगी, वो राजा के रूप में दोबारा जन्म लेगा इसी कंट्री के, और जो इसके बाद दोबारा जो उसका दूसरा जो मरेगा वो इस कंट्री का भविष्य का मंत्री होगा, होने वाला मंत्री होगा। We are sick of our ascetic life. Ascetic means life of non-attachment. हम अपनी इस वैराग्य की ज़िंदगी से अब जो हैं काफ़ी तंग आ चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. अब हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करना है राजा और मंत्री के रूप में। Now keep your word, my lord, and put us to death. आप अपना वादा निभाइए महाराज और मुझे मृत्यु दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, और पहले मुझे, ठीक है याद है ना, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहन विचार में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो अपने दूसरे सेकंड बर्थ के अंदर, दूसरे जन्म के अंदर अपना राजपाट किसी को नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे टाइम की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन करने के लिए अगले दिन पर टालने का ऑर्डर दिया, और उसने अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली कंसल्ट किया। It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि हम अपने किंगडम को, राज्य को दूसरे लोगों को दे दें अपने अगले जन्म के अंदर। Let's go on the stake ourselves and will be reborn as king and minister again. आओ हम सूली पे चढ़ जाते हैं और दोबारा से हम राजा और मंत्री बन करके जन्म ले लेंगे, हमारा जन्म हो जाएगा। Holy man, do not tell lies, he said. And the minister agreed. राजा ने कहा कि ये संत लोग हैं, होली मैन हैं, ये धार्मिक लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, और राजा जो मंत्री है वो भी एग्री हो गया इस बात से। So he told the executioners will send the criminals tonight. इसलिए उसने
अपने एग्जीक्यूशनर्स, जो फांसी पे, जो सूली पे लटकाने वाले लोग थे, उनको कहा कि आज रात हम क्रिमिनल्स को सेंड करेंगे, भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो पहला व्यक्ति तुम्हारे पास में आए तो उसको डेथ, सबसे पहले उसी को डेथ मिलनी चाहिए। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर दूसरे आदमी को सूली पे चढ़ा देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक मत करना। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. Both the king and the minister reached the cell where the guru and his disciple were locked. They released them and they disguised themselves as guru and the disciple, and it was already decided with loyal servants. राजा और मंत्री ने वैसा ही किया जैसा उसके लॉयल सर्वेंट्स के साथ पहले से ही, बिफोर एंड का मतलब पहले से ही, इन एडवांस डिसाइड किया गया था, और उनको स्टेक पे ले जाया गया और प्रॉम्प्टली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और तुरंत, प्रॉम्प्टली का मतलब एट द वेरी मोमेंट, इंस्टेंटली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात वे विलाप करते रहे और किंगडम, राज्य के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों ने अचानक गुरु और डिसाइपल के बारे में सोचा और उनको जो है पकड़ लिया जब वो वहाँ से बिना बताए टाउन को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। Others agreed, दूसरे भी एग्री हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने बैग का मतलब होता है रिक्वेस्ट किया। उन्होंने गुरु और डिसाइपल से, उसके शिष्य से, अपने किंग और मिनिस्टर बनने के लिए रिक्वेस्ट किया। It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो कहता है कि डिसाइपल को मनाने में, परसुएड का मतलब राजी करने में, कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. और फाइनली वे एग्री हो गए उस फुलिश किंग और मूर्ख मंत्री के राज्य में राज करने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और इस शर्त के ऊपर, कंडीशन के ऊपर कि वे जो ओल्ड लॉज हैं, जो पुराने कानून हैं, उनको बदल सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, कि नाइट तो नाइट होगी और दिन दिन होगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और उसके बाद में कहता है कि वन डूडू फॉर ए सिंगल डूडू यू कुड गेट नथिंग, उसमें कुछ नहीं मिल सकता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये सब दूसरे स्थानों के जैसे ही हो गया। इसका मतलब both the guru and the disciple put the things in proper order, and now the people were very happy as they have got the wise king and minister as the guru and the disciple, and now everybody was happy, even the guru and his disciple both were happy. So this is the story of a foolish king and his minister. And now I hope you must have got the explanation line to line, and there should not be any problem. If you still have any doubts regarding the story, then you can raise your questions, queries through WhatsApp platform. You can call me up also, and you have my mobile number with you. If you like my explanation, my videos, then please do not forget to share, like, and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.